To our channel Commerce Jankar. In this video we are going to discuss about an update from MNIT Jaipur, especially for those who have applied for non-teaching vacancies published recently. This is the home page of MNIT Jaipur website. As we scroll down, we see the latest news. As we click on view all, here we can see advertisement number which was published in 2023 and list of provisionally shortlisted, not shortlisted applicants for various posts, right? और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी regarding MNIT non-teaching posts, so in that video we have discussed about the syllabus and the scheme of exam. अभी हम इस वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सुपरिटेंडेंट दैट हाउ वी कैन कवर दिस सिलेबस. सो एज यू क्लिक ऑन दिस लिंक अनदर विंडो ओपन्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल दी नॉमेनक्लेचर ऑफ दी पोस्ट्स जो कि पब्लिश हुई थी एंड एज पर दी पोस्ट दैट यू हैव अप्लाइड फॉर आप जो है उसको एज पर योर एप्लीकेशन नंबर चेक कर सकते हैं वेदर जो है आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया है कि नहीं. लाइक फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार वी विल सी एज एन एग्जांपल. लेट इट ओपन जस्ट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड मेडिकल ऑफिसर, ये जो दो पोस्ट थी दीज आवर ग्रुप ए पोस्ट एंड रिमेनिंग वर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, राइट. दोनों के लिए ही ग्रुप ए एंड बी के लिए जो है सिलेबस ऑलरेडी एंड स्कीम ऑफ एग्जाम ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है वेबसाइट पर. इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, आप जो है वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं. सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड एंड नॉट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स. So let us see list of provisionally shortlisted candidates first. So how many candidates have been called? So let us see 479 candidates, right? So they have been shortlisted for the next stage which is exam, and these are not shortlisted candidates. And here जो है यहाँ पर आपको given है कि what all remarks are there, and you need to fulfill these lacunas which have been found out in your applications. So आपको जो है redressal का time period दिया गया है, and not shortlisted जो candidates हैं they can give their representation, right, if they wish to with their authentic documentary evidence, right, and from the registered email ID. and यहाँ पर आपको जो है email ID given है with your documents. You can give your representation by 5th of July 2023, right. So we can say that by another week or so after the 5th of July another list may be published, or they may be notified these people that after their representation, तो उन कैंडिडेट्स में से भी किसी को जो है शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है इफ़ दे फुलफिल दीज जो यहाँ पर रिमार्क्स गिवन है. देन द कैंडिडेट्स में इंक्रीज, राइट. सो इट मे टेक अनदर वीक और सो आफ्टर 5th of July, and we may expect the exam by end of July or maybe in the first or second week of August. So you might not be having that much time as the syllabus is quite vast. Let us see the syllabus here. It was again there in the website. So syllabus for the post of assistant registrar and superintendent जो है ये वाला जो part है part 1, 2 and 3, right. This is completely same, so we can discuss it one by one. Only these parts we will discuss, that how and how much time it would take for you to prepare for this. So general administration, if you see this one word constitution itself is quite vast, right.
I would not advise you to pick up Lakshmikant at this point of time. So I would say that you pick up Lucent and prepare this part. Right, there would be around 40 to 45 pages of constitution, right, in Lucent. So prepare from there, right? And these FR and SRs you can prepare from the Swami's book. And apart from that, यहाँ पर आप देखेंगे GFR जो है वो भी आपको पढ़ने हैं. देन जेम रूल्स, देन डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, ऑल दीज आर अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, राइट. GFR जो है वो कि आप गूगल करेंगे देन यू कैन फाइंड आउट दीज रूल्स जो है कि ईज़िली एक्सेसिबल हैं. एंड आप उसको जो है बहुत ही एक लूसिड लैंग्वेज में जो है वो पब्लिश किए गए हैं. एंड जेम रूल्स आर ऑल्सो अवेलेबल. इफ़ यू वांट टू रीड स्पेशली जेम रूल्स तो आप किसी भी IIT या NIT की वेबसाइट से जो है जेम रूल्स IIT गूगल करेंगे देन बहुत सारी स्लाइड्स आपको जो है अवेलेबल हो जाएंगी गूगल के थ्रू. आप किसी भी स्लाइड को 2-3 आप स्लाइड्स देखेंगे देन यू वुड बी डन विथ जेम रूल्स. एंड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर सेम एज GFR जो है काफ़ी थिक एक जो है PDF आपकी अवेलेबल है वेबसाइट पर. बट यू शुड नो ओनली द बेसिक्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, राइट. देयर इज़ अ क्लॉज इन GFR एज वेल अबाउट डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, तो वहाँ पर भी आपको इसके बारे में रीड करना है. देन बजटिंग इज़ देयर, इंटरनल ऑडिट इज़ देयर. देन HEFA इज़ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, जिसकी एक अपने आप में एक वेबसाइट है जो कि हायर एजुकेशन को फाइनेंस करती है, राइट. तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं उनकी वेबसाइट से, और आप जो है विकिपीडिया पर भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं. PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके बेसिक्स आप चाहे इसको यूट्यूब में कुछ वीडियोस देख सकते हैं. PFMS आप गूगल करेंगे या फिर इनकी खुद की वेबसाइट से भी जो है थ्योरी वाला पार्ट इसको कवर किया जा सकता है. प्रैक्टिकल्स आई डोंट थिंक दैट दे वुड बी आस्किंग, राइट. देन मेडिकल अटेंडेंस रूल्स जो है वो आप स्वामी से कवर कर सकते हैं, CGHS एंड ऑल. सो नेक्स्ट थिंग इज़ योर NIT एक्ट या उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं आप उनकी वेबसाइट से जो है ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. अदर देन दैट आप देखेंगे इन्होंने कवर किया है हायर एजुकेशन की जो अदर डिटेल्स हैं उनको भी कवर किया है, जैसे कि MOOC हो गया, LMS हो गया, ERP हो गया, राइट. एंड यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, राइट. तो अलॉन्ग विद दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपको इन डेप्थ आपको पढ़ना होगा विद रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू स्कूल्स के भी बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कि अभी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, राइट. देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बेसिक्स कवर होने चाहिए. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, सभी आपको जो है बेसिक्स. इसके लिए आप जो है आप 12th क्लास की जो NCERT है कॉमर्स के लिए, तो वहाँ से एक जो है आप इजीली जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं विद इन 1 day और 2 इसको कवर करने के लिए, राइट. देन E-ऑफिस है, डिजिटाइजेशन प्रोसेस है, राइट. तो E-ऑफिस जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है विद इन मोस्ट ऑफ दी ऑटोनॉमस बॉडीज़ एंड इन दी मिनिस्ट्रीज एज वेल, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा. देन यहाँ पर जो है डिफरेंट लॉज कवर किए गए हैं. डिफरेंट लॉज इटसेल्फ जो एक पर्टिकुलर लॉ है दैट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ इन डेप्थ स्टडी. लाइक RTI आप पढ़ेंगे, एंटी रैगिंग एक्ट जो है अभी तक आई हैव नॉट सीन सो मच ऑफ syllabus in any of the exams which have been conducted before for any known teaching posts, right. But this is this syllabus, right. But this syllabus is itself I would say that it's quite vast for anyone to cover within 1 month, right. So आप जो है इसको start कीजिए, and I would say that as much as you can cover, you should cover it, because earlier in NIT was that
exam was conducted only to shortlist the candidates for interview, and the whole selection was based upon the your performance in the interview itself. But now it is not so, right? So your exam performance will decide whether you will be selected or not, right? So all these laws you can cover, like Anti-Ragging Act, लेबर लॉज के अंदर में स्पेशली जो है आप सारे लेबर लॉज मोर देन 50 और 60 लॉज आर देयर, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट देम, बट जो बेसिकली एक ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर में एप्लीकेबल हो सकते हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ पर जो है ऑलरेडी गिवन भी हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर पे क्या एप्लीकेबल हो सकते हैं, ESI EPF ग्रेजुएटी वगैरह, ये सभी आपको मिनिमम वेज एक्ट जैसे हो गया, तो ये आपको मालूम होने चाहिए. देन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, राइट, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं, उसके बारे में आपको मालूम होने चाहिए. देन IT एक्ट इज़ देयर 2000, इसके बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए. कंपनीज एक्ट 2013, अब कंपनीज एक्ट 2013 जो है इटसेल्फ जो आई डोंट नो, इट वुड टेक एन ईयर जो कि एक पूरा कंप्लीट करने के लिए, बट दे वुड नॉट आस्क यू दैट मच in depth. So for that I would say that you cover up the basics, how many sections are there, right, what is articles of association, memorandum of association, and how many meetings are to be conducted, right, directors and auditors, like for internal audit, so it can be covered here as well in the how many types of auditors are there, right, how many times the audit will be conducted, and all this has to be covered with respect to autonomous bodies, right. Then Indian Contract Act, Contract Act you can cover from any of the material available on the website. For this I would say that you can cover it up from the ICAI material. It is freely available on the website. आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो पहले जो है CPT के नाम से अवेलेबल हुआ करती थी मर्केंटाइल वेब जो लॉज हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप वहाँ से कवर कर सकते हैं. ऑन देयर वेबसाइट इट इज़ अवेलेबल. देन इनकम टैक्स एक्ट जो है फोकस ऑन सैलरी स्पेशली, एंड अदर देन दैट, जैसे कि लास्ट टाइम जो है एग्ज़ाम में हाउस प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एंड जो है TDS, स्पेशली TDS जो है आपको कवर करना है कि जो है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्टर्स जो क्या रेट होना चाहिए, एंड रॉयल्टी और एनी अदर देन दैट इफ़ द पेमेंट्स आर बीइंग मेड बाय द ऑटोनॉमस बॉडीज़, राइट, because there will be tenders and contractor payments will be made, so कितना TDS कटना चाहिए. Then financial management of an academic institute and service, so GST will cover up these service tax rules. So it is quite vast syllabus. आप if you are waiting that first we should get the admit card and then we will study, then you would not have that much time, right, because they may send you an email that after a week or so your exam will be conducted, so you would not have that much time to research, because ये अपने आप में एक research है, right. This syllabus is not that you have to read one book or two books then you can go and take the exam. ये आप देखेंगे NIT एक्ट जो है इसमें आपको वर्क कमेटी, सेनेट, डिपार्टमेंट, इन सभी के बारे में रिसर्च करके अपने आप से आपको नोट्स आपको बनाने होंगे, एंड यू शुड क्रैम, टू बी ऑनेस्ट आपको ये सब क्रैम करना पड़ेगा, राइट. सो मच ऑफ डेटा इज़ देयर, so I would not make this video too long. So if you have any questions, then you can write to me in the comment section, and thank you very much for listening. I would request everyone to subscribe to our channel for such videos, and we will bring the latest information about such vacancies as well. Thank you very much. Jai Hind.